Hi children, all of it and fine? Good. God bless you. Children, in the previous session we have discussed about the dominance of Congress. किस प्रकार भारत में कांग्रेस का प्रथम 3 चुनावों में वर्चस्व बना रहा. क्या reasons थे? What were the reasons that Congress was able to maintain its same position in all the first 3 elections? And along with it, we have also discussed about the nature of dominance. Congress के इस प्रवृत्ति का क्या reason था? If it was a single party which had its dominance in our country, that was totally different than the political parties which were existing in other countries too. ये सही है कि ये एक पार्टी थी जिसका वर्चस्व भारत में बना था. इसके साथ ही साथ अन्य देशों में भी सिंगल पार्टी रूल कर रही थी, लेकिन उन कंट्रीज की हमारे कंट्रीज के साथ अगर तुलना की जाए तो उसमें काफी अंतर था. कि क्या रीजन था? What was the reason that Congress was able to prove its dominance? So about all this we have discussed yesterday. So related to this, today's topic is topic number 4. Congress as social. Please write. Just check your book. Congress as social and ideological coalition. This is a 4th heading. Congress as socialist and ideological coalition. किस प्रकार कांग्रेस एक सामाजिक और विचारात्मक गठबंधन के रूप में भारत में अपनी स्थिति कायम रखने के लिए सफल रही. We will be discussing under this in 2 different topics with different examples, as in social field as well as and ideologies also. ना केवल सामाजिक स्तर पर बल्कि विचारधाराओं को लेकर भी कांग्रेस ने किस प्रकार अपने गठबंधन को यथास्थिति बनाए रखा, इसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. Previous session already I have told you that in 1885 Indian National Congress was established, and we have already discussed the role of this party in India while gaining independence. स्वतंत्रता संग्राम के समय कांग्रेस की क्या भूमिका थी, इसके बारे में हमने पीछे डिस्कस किया है. So children, it is very clear that Congress had a group of people who were educated, who were, you can say, prosperous, who were professionals, and even they were related to commercial field. कांग्रेस में शिक्षित लोग थे, अंग्रेजी भाषा जानने वाले लोग थे, और व्यवसाय के साथ साथ उनमें अलग अलग योग्यताएं थी. And this group faced a phase of mass movement. और जब इस ग्रुप ने कांग्रेस में शामिल इन सभी प्रकार की योग्यता रखने वाले इस समूह ने जन आंदोलन जारी कर दिया. और इस समय किसका था? अंग्रेजों के शासन काल था. और यही जन आंदोलन के कारण द पार्टी वॉज नोन एज द मास पॉलिटिकल पार्टी. ये एक पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर कर भारत में आई. And in this, the Congress, they had English-speaking people, and even they had people of upper class as well as middle class. Not only this, they had the people of urban categories, the people those who were living in urban places, as well as they were having the people of belonging to elite groups. So this shows that they had people belonging to different societies. स्पष्ट करता है कि कांग्रेस में समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को स्थान था. And when it took part in civil disobedience movement, what was the result for this? It got social support from the people. I repeat, because it had
पीपल ऑफ डिफरेंट क्लासेस, कांग्रेस में अलग अलग सामाजिक स्तर पर रह रहे लोगों का समावेश था। और जब इस पार्टी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया, रिजल्ट क्या हुआ? इसे समाज के प्रत्येक वर्ग का सपोर्ट मिल गया। And as well as the peasants, workers, owners and people of the three classes, upper, middle and lower, all had space in this party. चाहे वह किसान हो, चाहे श्रमिक हो, चाहे वो क्यों ना एक ओनर हो, या फिर समाज के उच्च, मध्यम और निम्न, इन तीनों ही वर्ग के लोगों का कहां पर स्थान उनको मिलता था? कांग्रेस में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हर प्रकार के लोग, समाज में रहने वाले हर वर्ग के लोग कहाँ थे? कांग्रेस में शामिल थे, which gives the you can say feeling of unity in diversity, which is the important characteristics of our Indian culture। ये हमारे भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी पहचान है कि हमारी संस्कृति में विविधता में एकता पाई जाती है। कई धर्म के लोग होंगे, कई समाज के लोग होंगे, लेकिन सभी को they got a platform in Congress party। So this shows that it had social coalition। यहाँ सामाजिक गठबंधन था। Now we can discuss about the ideological coalition। हम विचारात्मक रूप से भी कांग्रेस में गठबंधन था। कैसे? Because these groups, different types of groups, they merged in Congress with the identity of Congress। ये जो अलग अलग ग्रुप थे, इनकी अलग अलग विचारधाराएं भी होंगी, तो ये कांग्रेस में अपनी पहचान अलग से नहीं, कांग्रेस की पहचान के साथ शामिल हुए और अपनी पहचान इन्होंने कांग्रेस पार्टी को बना लिया। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे लोग भी थे इन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपनी पहचान नहीं बनाया, ग्रुप में शामिल हुए, बट विद देयर ओन बिलीफ एज अ ग्रुप, अपनी जो विचारधाराएं थी, जो अपने विश्वास थे, एक समूह के रूप में ये कांग्रेस में शामिल हुए। एंड दे आइडेंटिफाइड विद देयर ओन आइडेंटिटी। एम आई क्लियर? इनकी अपनी वही पहचान थी जिस विचारधारा को वो रखते थे। इससे स्पष्ट होता है कि ऐसे लोग जिनकी विचारधाराएं मेल ना भी खाती हों, उनको भी कांग्रेस एक्सेप्टेड, उनको भी कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया। Because the Congress, when we speak about the ideologies, you can speak about that some were conservative, कुछ लोग रूढ़िवादी थे, some were radical, कुछ उग्र विचार के थे, कुछ अपने परंपराओं को बिल्कुल बदलना नहीं चाहते थे, कुछ लोग थोड़ी सी बात पर उग्र हो जाते थे, अग्रेसिव हो जाते थे। As well as we have also read that some of them were of extremist behavior and some were moderates। कुछ नरम विचारों के थे और कुछ गर्म विचार, जिसका वर्णन आपने हिस्ट्री में पहले पढ़ा है कि कांग्रेस में नरम दल और गरम दल, दो विचारधाराओं वाले लोग थे। दे हैड द सेम गोल, भारत की आजादी तो वो चाहते थे, लेकिन उनके काम करने का तरीका अलग था। बट ऑल वेर एक्सेप्टेड ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, सभी कांग्रेस में शामिल थे। एंड इवन इफ वी स्पीक अबाउट the role of Congress under this coalition, believe it was in the time of pre-independence that there were people of many organizations, many parties, they had their own constitution, they had their own structure of work, but they all exist within Congress। बहुत से ऐसी संस्थाएं थी, बहुत से ऐसी पार्टीज थी जिनके अपने विचार थे, अपने नियम थे, लेकिन सभी को कांग्रेस ने अपने साथ रखा। इससे क्या हुआ? हर प्रकार की पार्टी कांग्रेस के पटल पर काम करती थी, जिसका एग्जाम्पल है आपका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस में रहकर ही इसकी अपनी एक पहचान थी, बट आफ्टर सम टाइम इट बिकेम एज अपोजिंग पार्टी। कुछ समय बाद यही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस की विपक्षी पार्टी बन गई। बट still having such differences, Congress was able to manage with the affairs। इतनी सारी विभिन्नताओं के बाद भी कांग्रेस
उन लोगों को, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे समूह में है, उनके साथ वह मैनेज करती थी, अग्री करती थी, उनके साथ अपने विचारों में संतुलन बनाने का प्रयास करती थी, which shows that Congress was having the nature of social and ideological coalition. कांग्रेस में न केवल सामाजिक बल्कि विचारों की भी तालमेल थी. With this, and this shows that Congress had a tolerant nature. So we can move to point number 5. The next topic, tolerance and management of factions. Tolerance and management of factions. Our next topic is tolerant and management of factions. In this it is children that गुटों में तालमेल रखती थी, और वो भी कैसे, सहनशीलता के साथ. इतने सारे गुट, अलग अलग विचारों के, अलग अलग समाज के कांग्रेस में थे, लेकिन बड़े ही सहनशील स्वभाव से कांग्रेस ने उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर वेलकम किया. कैसे किया? क्योंकि उसके विचार, उसकी जो नेचर थी, इट वॉज टॉलरेटिंग. सहनशीलता से, समझदारी से कांग्रेस ने इनको अपने ग्रुप में स्थान दिया. सो हाउ इट मैनेज्ड विथ सच ग्रुप्स, दैट वी विल सी इन दिस. कैसे उन्हें टॉलरेट किया, इसको हम इस टॉपिक में मेंशन करेंगे, डिस्कस करेंगे. Children, it is said that Congress had a nature of coalition. कांग्रेस सभी के साथ तालमेल रखती थी, and that was its unusual strength. ये उसकी बड़ी ही अद्भुत प्रवृत्ति थी, जो उसके विजय का कारण बन सकती है. यह पार्टी में वर्चस्व बनाए रखने का, देश में अपनी पार्टी के वर्चस्व बनाए रखने का एक कारण हो सकती है. हाउ, कैसे, क्या करती थी आखिर इस कॉलिशन के लिए? अपने वर्चस्व को इसी प्रकार कंटिन्यू करने के लिए कांग्रेस ने क्या करती थी? कांग्रेस, इट यूज्ड टू एक्सेप्ट, इट यूज टू वेलकम whosoever wants to join the party. जो चाहे उसकी पार्टी में अपनी अलग आइडियोलॉजी, अलग आइडेंटिटी के साथ भी शामिल हो सकता था. अब जब अलग आइडियोलॉजी है, पहली बात कि दे यूज टू वेलकम, इट मींस वेलकमिंग, सभी को वेलकम करते थे विद डिफरेंट आइडियोलॉजीज, डिफरेंट सोशल, मीन्स इसमें जो भी किसी भी तरह से, चाहे आइडियोलॉजी अलग हो, चाहे उनके सोशल ग्राउंड्स अलग हो, ऑल वेर एक्सेप्टेड. एंड इट इज सेड दैट दे वेर अगेंस्ट एक्सट्रीम नेचर. नो, दिस वॉज टोटली नो. कड़े रुख के साथ वो कभी किसी सदस्य के साथ पेश नहीं आते थे. दे वेर टू मॉडरेट. एक्सट्रीमिज्म वॉज टोटली प्रोहिबिटेड. एकदम कोई भी कड़े रुख अपनाकर अपना काम या अपने सदस्यों के साथ व्यवहार नहीं करता था. एंड देन दिस शोज दैट दे यूज्ड टू कीप बैलेंस इन ऑल द इश्यूज. देयर वाज बैलेंस ऑन द इश्यूज, एनी इश्यूज, कोई भी इशू होगा बैलेंस रहेगा, कि कोई भी अगर घटना है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, देन इट विल बी सॉल्व थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. आपसी समझदारी से उसका सॉल्यूशन निकालते थे. एंड दे यूज्ड टू कॉम्प्रोमाइज. अब इतना बैलेंस की बात हम करेंगे, इट मींस कॉम्प्रोमाइज. कॉम्प्रोमाइज करते थे. दे यूज्ड टू कॉम्प्रोमाइज विद द पीपल. जो मेंबर थे उनको कॉम्प्रोमाइज करके उनके साथ डील करते थे. उनके साथ जिद्दी स्वभाव के साथ वो कभी डीलिंग नहीं करते थे, समझौता रखते थे. कभी उनकी सुनते थे और कभी अपनी बात बताते थे. They used to accept and they used to make them accept. They used to agree and they used to make others also agree to their opinion. That also was one characteristics of tolerance which Congress had. So what happened with this? What happened? अगर ये सारी बात रही, ये सारी विशेषताएं रही, what will be the result? The result came or created tough condition for opposition. इन सारी विशेषताओं के कारण कांग्रेस स्थिर रही, और ये विपक्षी दल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया. एंड इफ द ऑपोजिशन, इफ यू दे यूज्ड टू, ऑफ कोर्स दे विल क्रिटिसाइज. व्हेन दे यूज्ड टू क्रिटिसाइज और व्हेन दे यूज्ड टू टेक एनी इशू, अगर वो किसी भी विषय को मुद्दा बना लेते थे
उनके विपक्षी दल, देन व्हाट कांग्रेस यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू टेक इट इन वन ऑफ द प्रोग्राम्स। उस इशू को जो जनहित में होता था वो उसे अपने कार्यक्रम में शामिल करते थे, जिससे उनको जन समर्थन मिलता था। उस इशू को वो समस्या नहीं बनाते थे, उसको अपने कार्यक्रम में शामिल करके जनहित का कार्य करते थे। That also was something good. And whoever was there, because of this nature, internal affairs was solved in a tolerating manner. आपस में जो भी लोग हैं इतने सारे आइडियोलॉजीज को लेकर, अलग अलग स्वभाव को लेकर, उनका वो क्या करते थे, आपस में ही वो एक दूसरे की समस्या को सुलझा लेते थे। ये नहीं कि अपना अलग, हम अपनी समस्या हमारी नहीं सुलझी हम अपना अलग पार्टी बना लेंगे, नो, not such thing was there at that time. And then if a group was unsatisfied, कोई एक ग्रुप अनसेटिस्फाइड है तो भी वो अपना दल अलग नहीं बनाता था, वो उसको उसी पार्टी में रह के सॉर्ट करता था, उसी कांग्रेस पार्टी में रह के एक दूसरे की समस्या को वो लोग सुलझा लेते थे। राजनेता इस मामले जो हमारे शीर्ष नेता थे उस समय, उन्होंने इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एंड व्हेन वी स्पीक अबाउट अ ग्रुप, when they had any problem, they used to think better to compete with the group which is existing in the party. मतलब अलग अलग विचारधाराएं हैं and they have got a place, it means there only they will compete with each other. उस पार्टी में रहते हुए एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ कंपटीशन रख सकता था, अपने इश्यूज को अग्री या डिसअग्री कर सकता था, ना कि एक नई पार्टी बना लेना एज ऑपोजिशन, नहीं, नो सच थिंग्स वर टेकिंग प्लेस विच वाज नोन एज फैक्शन। ये फैक्शन जो आपका वर्ड है ये गुट का नाम है, मतलब कांग्रेस में अलग अलग विचारधारा रखने वाले कई गुट थे, कई ग्रुप थे। सो सच नेचर of Congress, which was only to solve the issues through mutual understanding, and it was also based on ideological consideration. अगले की विचारधारा को हम बिल्कुल नकार नहीं सकते, उनकी विचारधारा का मेल एक सदस्य अपने विचारधाराओं के साथ तालमेल करके ही उसको प्रस्तुत करता था। But there was some time it happened that people became ambitious, which created rivalry. अगर कोई व्यक्ति बहुत ही महत्वाकांक्षी हो जाता, उसमें प्रतिस्पर्धा की भावना हो जाती, तो भी कांग्रेस कोशिश करती थी कि वो उसी के दल में रहे। They too had room in the Congress. उन्हें भी कांग्रेस से अलग नहीं होना पड़ता था, वे अपनी उस विचारधारा को लेकर भी कांग्रेस में बने रहते थे। मीन्स देयर वे डिफरेंट फैक्शंस वर्किंग विद इन द पार्टी, अलग अलग गुट कांग्रेस में रहकर काम करते थे। एंड दिस गेव एन एडवांटेज इन द स्टेट assemblies, administration in the state assemblies. We have read about the MLAs. हमने MLAs के बारे में पढ़ा था कल, याद आ रहा आपको? MLAs के बारे में कल हमने पढ़ा था, ठीक। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट में जो MLAs होते थे, जो काम करते थे, जो इनकी पार्टी को बिलोंग करते थे, वहां प्रांतीय स्तरों पर इनकी जो सरकार कांग्रेस की बनी थी, देयर डिफरेंट फैक्शंस वर सीइंग टू द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स। अब इतने सारे राज्य में अलग अलग जो प्रांतीय सरकारें हैं वो अलग अलग गुटों की होती थी। अब अलग अलग गुट हैं, कोई सामाजिक स्तर पर हैं, कोई विचारधाराओं के स्तर पर हैं, तो उन्हें उन लोगों का सपोर्ट, दे यूज्ड टू गेट द सपोर्ट ऑफ द पीपल वेयर दे वर रूलिंग। जहां वे शासन करते थे उनके विचारों को सहयोग करने वाले लोगों का उन्हें समर्थन मिलता था। क्लियर? फॉलोड? जो हमारे विचार हैं शायद आपके नहीं है, लेकिन जहां हम शासन कर रहे हैं ऐसे बहुत से लोग होंगे जो हमारे विचारों को मानते होंगे, सही मानते होंगे, ठीक। तो दे वेर सपोर्टिंग मी विच वॉज अ ग्रेट एडवांटेज टू द पार्टी। ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज था।
एंड दिस वॉज नॉट डन बाय ऑपोजिशन। ये काम ऑपोजिशन नहीं करती थी, उनमें कई गुटों के लोग, कई विचारधारा के लोग एक साथ नहीं काम करते थे। सो द बैलेंस मैकेनिज्म ऑफ कांग्रेस, जो ये संतुलन की प्रवृत्ति कांग्रेस में थी कि देयर विल बी कॉम्पिटिटर्स बट दे विल बी विद इन द पार्टी, दैट वॉज अ ग्रेट एडवांटेज, दैट वॉज अ गुड नेचर of Congress, which proved that party to be in the three phases of the elections, three elections which took place, and they were able to maintain the same position. उसकी यही प्रवृत्ति, यही नेचर कांग्रेस को उसकी सफलता दिलाने में सहायक रहे कि प्रथम 3 चुनावों में कांग्रेस ने अपना वर्चस्व यथास्थिति बनाए रखा। और ये भी कहा जाता है इन द फर्स्ट डिकेड इन द इलेक्टरल competition, Congress was as a ruling party and as a competitor too, about which we have discussed yesterday, that CPI was able to get only 16 seats in the first election. इस प्रकार उसका कोई इतना विरोधी भी नहीं था उस समय, क्योंकि जहां कांग्रेस सरकार नहीं भी बनाई वहां भी उसका वर्चस्व, right, was able to gain control over on that province also. That is why it is said that there was a Congress system in that decade. इसीलिए कहा जाता है कि उस काल में कांग्रेस सिस्टम ही रहा। Am I clear? So children, go through the points, okay, and then only you will write it in your daily notes copy. Please do not forget to write the points as explained in your daily notes copy, because that only will help you to write the notes. If you copy the points carefully, if you listen to the video carefully, you will be able to expand your answers. You will not be writing directly from the book. Okay? Thank you. God bless you.